cheat and deceive in somewhere, in some time, in some place. But you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. کہ ہر کسی کو ہر جگہ جو نا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب, بیگم صفدروان صاحبہ, آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے, جعلی پارلیمنٹ جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی, جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ یار, کوئی اتنا بھی دور نہیں, اتنی بھی کہ پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار, میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب, بیغم رہے. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر جو لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ, اس سے بڑا بددیانت, اس سے بڑا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکات دینے والا, مسرور احمد سے زکات دینے والا, آپ کا جناب نثار گل سے زکات دینے والا, آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکات دینے والا, آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکات دینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے, اربوں ڈالر, اور 10 ہزار کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اس کے مذاق گواہی دی, لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا, فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا, رائے لی کہ یار ابھی نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, اقتصادی اداروں کے پاس بھی ہیں, ساری دنیا کے پاس ہیں. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر, اکثر یہ شعر سناتا ہوں, اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پہ سوار ہوئے تھے نا, یاد ہے نا جب وہ جا رہے تھے, اسی طرح گلیری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں. اسی میں ان کی جناب بہتری ہے اور اسی میں ان کی سیاست, ان کے معاش, ان کے کاروبار, ان کی عزت کا بھلا ہے. شہباز صاحب نے ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے عدالت میں, اور ان کا یہ موقف بھی ہے کہ ہمیں عدالت نے اجازت دی ہے جانے کے لیے باہر. یہ بتا دیں کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اتنی کوشش کیوں کر رہی ہے, کیا حکومت کو عدالت کی جانب سے ڈائریکشن ہے؟ اور دوسرا, اگر میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا کیوں ضروری ہے حکومت کے لیے؟ اور چوہان صاحب جو شہباز شریف کا بیان رکھی ہے اس میں ایک پیرا یہ لکھا ہے کہ جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے, تو ڈاکٹرز نے تو انہیں اجازت نہیں دی ہے. اچھا ویسے اسی کے ساتھ کلیئر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ایف اے ٹی ایف پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حمایت چاہیے تھی وہ تو ساری طاقت لگانے کے باوجود نہیں مل سکتی. ڈرایا بھی گیا, دبکایا بھی گیا, میاں سب کو لا رہے. اب ایف اے ٹی ایف کا چیپٹر تو ہو گیا کلوز, اس کے باوجود بھی کہ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ हैं ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲੇਟਲੈਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ अच्छा जी सारे पूछ लो जी सर ये प्लेटलेट्स जो डॉक्टर चढ़ाते उतारते हैं वो तो इधर जवाब तसल्ली से उसके बाद जनाब जिशान साहब पूछेंगे फिर फजाफी भट्ट साहब पूछेंगे फिर आप। अच्छा जी इस तरह है कि आपने कहा कि क्यों ज़रूरी है। देखें ये 21वीं सदी है, ये कानून की, इंसाफ की, आइन की, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, ये वो सदी है ना। बनाना रियासत यहाँ कोई भी नहीं बन सकता, कोई मुल्क कोई साहब बहादुर ने क्या बात कह दी। वो दो चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर करनी है। सबसे पहले FATF के हवाले से आप सारे आवाम को पता है कि 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल लेवल पे एक सबसे क्रूशल और सबसे बड़ा जुर्म जो है वो कंसिडर किया जाता है। और फिर 9/11 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो अदारे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तमाम ममालिक के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाने को एप्रिशिएट कर रही हैं, बकअप कर रही हैं, पुश कर रही हैं कि तमाम ममालिक जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जगह अपने कानून साजी करें। और उनका ये ख्याल है कि दुनिया के अंदर जितनी दहशत गर्दी होती है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में आया वो भी बुनियादी तौर पर 2007 से लेके 2018 तक जो इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जो हुकूमतें थीं, और वो मिसाक जमहूरियत जिसे मैं राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाला सिस्टम कहता हूँ, उसके तहत इतनी रच के लूटमार की गई। और फिर उसके बाद एयान अली की तरह की बहुत सी अदाकाराएँ, फनकाराएँ, और फिर जनाब ताफ़ी भट्ट की तरह के बहुत से ऐसे करैक्टर एक्टर जो सामने आए कि जो पाकिस्तान की इन दो बड़ी पार्टियों के फ्रंट मैन के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े भी गए। और फिर ये पूरा इंकशाफ हुआ कि किस तरह हमारी ये दो पार्टियां जो बड़ी हैं स्पेशली, और इनकी लीडरशिप जो ख़ानदान है आले शरीफ और आले जरदारी, और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल जरदारी साहब, ये किस किस अंदाज से यहाँ से लूट मार का पैसा बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। और उसी की बुनियाद पे फिर पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल हुआ। अब इनके हाथों की लगाई हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, PTI की वफाकी हुकूमत, और हम लोग दांतों से खोलने लगे हुए हैं हर शोबे ज़िंदगी के अंदर। इस ग्रे लिस्ट से निकालने की भी जो जिद्दोजहद है उसके अंदर हम अल्लाह पाक के करम से कामयाबी के करीब हैं। और FATF की तरफ से एक रिक्वायरमेंट थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से 2010 का जो आपका कानून है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए, इफेक्टिव किया जाए और मजबूत किया जाए, उसके अंदर तरामीम की जाए। और उसी ग्रे लिस्ट से निकलने के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनमें से एक मुतालबा ये भी था कि आप इस कानून के अंदर अमेंडमेंट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत से उनकी रिक्वायरमेंट्स को अल्लाह पाक के करम से पूरा कर दिया। अब ये वाला मुतालबा पूरा करने के लिए कौमी असम्बली के अंदर हमारे पास सादा अक्सरियत थी, हमने बिल पास करवा लिया। लेकिन कल जब यही बिल सेनेट के अंदर पेश हुआ तो बिलावल जरदारी साहब के जो लिखी हुई प्रॉम्प्टर की तकरीरें जो है वो करने के बड़े माहिर हैं, वही शहबाज शरीफ साहब जो हबीब जालब के शेर और जनाब बड़े माइक इधर उधर करके और बड़ा जनाब थरक के फड़क के जनाब मुल्क और कौम को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के ऐलान करते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा लीडर शो करते हैं। ये लीडरान, इन्होंने रियासत को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान की बका को मुकद्दम नहीं रखा।
इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को मुकद्दम नहीं रखा, इन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर के अंदर जो मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं उनको काउंटर करने को मुकद्दम नहीं रखा। इन्होंने मुकद्दम रखा कि जो खुद की इनकी खरबों डॉलर की लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और उसके जो केसेस चल रहे हैं उसको इन्होंने मुकद्दम रखा कि हम ना फंस जाए, हम ना फंस जाए, अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता। आज इन्होंने कल इन्होंने ये साबित किया कि हमारा बन जाए, हम बच जाए, हम कानून के शिकंजे में ना आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस और रेफरेंसेस हैं उसके हवाले से जो हमारी सारी लूटमार पकड़ी गई है वो हम उससे बच जाए। पाकिस्तान का जो होता है हो, रियासत का जो होता है हो, पाकिस्तान की आवाम का जो होता है हो, ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक एटीट्यूड, बिहेवियर, जेस्चर था जो कल आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने दो खानदानों की सरबराही में, आले जरदारी और आले शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और बिलावल जरदारी साहब की क़यादत में जो कल किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में की तारीख के अंदर स्याह अल्फाज के साथ हमेशा हमेशा के लिए लिखा गया है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं अक्सर ये जनाब डायलॉग सुनाता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कप्तान हैं, बाय बर्थ कप्तान हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को कप्तान की हैसियत से विक्ट्री स्टैंड में खड़ा करने की ख्वाहिश और जेस्चर और हिकमत अमली और डिटर्मिनेशन लेके हमेशा जो है वो अपने आप को मूव किया है। इंशाअल्लाह इसमें भी हम सुरखरू होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में, और FATF की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम इसका नेक्स्ट लायबल बनाएंगे और इंशाअल्लाह ये कवानीन सारे पास होंगे। दूसरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसों जनाब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं अपने सारे हमारी पटवारी बिठाए हुए थे, सारे के सारे जो है ना जिसको आप जनाब पकड़ते वही सुरख था। वो जनाब सारे नैब की अदालतों के जनाब चक्कर लगाने वाले, अपने अपने दौर में अपने लीडर की आशीर्वाद के साथ खरबों डॉलर की लूटमार करने वाले सारे तुरम खान थे। वहां बैठ के उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का सवाल हुआ और उनको वापसी के हवाले से जो जमानत उन्होंने दी थी, ये मैं अभी सारे टीवी चैनल्स के इंतजामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तीनों सेंड कर दिए आपको, ये साथ साथ चलाएं, ज़रा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को पता चले कि ये साहब बहादुर कितने बड़े झूठे हैं और झूठों के कितने बड़े IG हैं। ठीक है जी, इन्होंने इससे पहले भी बड़े लंबे लंबे झूठ बोले हुए हैं, वो भी हल्का फुल्का मैं तस्कीर के तौर पे आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो इन्होंने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री, यू टर्न की अगली डिग्री होती है वी टर्न, और उससे अगली डिग्री जो है ना, ये मैंने ये सारी डिग्री आपके सामने जनाब आपके लेके आ रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, वो होती है W टर्न। शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री W टर्न जो है ना परसों लिया। सारों के सामने कहते हैं जी केड़ी जमानत, मैंने कौन सी जमानत दी है? मैंने तो कोई जमानत नहीं दी जनाब अपने भाई को जनाब बाहर भेजने के वाले से। ये है इनके हाथों की लिखी हुई तहरीर, हाथों की, जो अदालत के अंदर बैठ के, और सारी पाकिस्तानी कौम जानती है कि जब हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो सारे टीवी चैनल लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे थे कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब अदालत के अंदर जनाब वकील सफाई ने ये कहा, वकील इस्तिगासा ने ये कहा, एंड में आके जनाब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा क्या था? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा था कि अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर जो करप्शन की अमाउंट है उसके मुताबिक 7 अरब 20 करोड़ रुपए का इनसे जनाब जमानत ली जाए, 7 अरब 20 करोड़ रुपया। लेकिन उस मौके पे अदालत आलिया का फैसला था, हमारे लिए काबिल एहतराम। हम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के और PTI के विजन पे चलने वाले लोग हैं। अदालतें जो फैसला करें, इत्तेसाबी अदारे जो फैसला करें सारा आंखों पे। उन्होंने कहा नहीं जी शहबाज शरीफ साहब आ गया है। उनका जनाब 7 अरब 20 करोड़ की लोड़ है, मैं है ना, मैं देता हूँ जनाब। फटोफट जनाब उन्होंने ये तहरीर लिखी जनाब, ये किसी फॉरेंसिक ऑडिट करवा लें, अगर ये उनकी तहरीर नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने कहा जी आप इसको स्टार पे लिख के दें।
स्टाम के ऊपर जनाब, ये स्टाम इस वक्त चल रहा होगा टीवी चैनल में, तमाम टीवी चैनल्स पे आज सारा दिन चलेगा, तमाम टीवी चैनल के शोज में भी चलेगा। ये रुसवाई और जगहसाई और झूठ का ये एफिडेविट है। ये आगे से मियां नवाज शरीफ साहब का, हाँ जी मेरा भाई जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है, मन जान दो तो मैं वापस आ जाऊंगा। जाना ये दोनों भाई, एक आईजी दूसरा डीआईजी, झूठों का, ठीक है ना जी। कहते हैं जी मैंने गवाही नहीं दी। वो खुदा के बंदो, ये 21वीं सदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सदी है, सोशल मीडिया की सदी है, इसमें चीज छुपती नहीं है। मैं अदालत का एक मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। साहब डार साहब भी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। वो तो मुजरिम है, सजा याफ्ता है। जब सजा याफ्ता है तो अब वो चले गए बाहर। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि जनाब उसमें डॉक्टरों का भी बीच में लिखा हुआ है। बिल्कुल जनाब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, 9-10 महीने हो गए हैं हजरत बाऊजी नवाज शरीफ साहब, ये पिछले 10 महीनों में लंदन में कैफेज में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, टिक्का कबाब खाया, जनाब बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाया। कोविड-19 के एक सीवियर माहौल के अंदर काबिल एहतराम उनका कोई जना पोता पोती साथ मास्क लगा के बैठी है। ये इतने दिलेर थे, इनको इतना एतमाद था अपनी सेहत का, अपनी सेहत के ऊपर, अपने पूरे अंदर के पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम था उसके ऊपर इतना ईमान था उनका कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मुझे तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लंदन के माहौल के अंदर। और ये आज से 3 महीने पहले जब हर रोज हजारों लाशें गिर रही थी वहां पे लंदन के अंदर, उन्होंने बगैर मास्क के बैठे। उन्हें पता था कि मैं बिल्कुल ठीक, सब कुछ किया। वहां से मौलाना फजल रहमान साहब को फोन भी किया, बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जा, तो मैं आया। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना नैब की, जेल भरो, तहरीक शुरू करो, दूसरों को नसीहत, खुद भी अफसियत। 10 बहाने करके ले गए, दिल के मजदाक, खुद तो बाहर भागे 10 बहाने करके, और वहां से बैठ के फूले कर रहे हैं अपोजिशन वालों को, आंखों देखा जहर खाने के लिए कह रहे खाओ जहर। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना, जेल भरो, तहरीक शुरू करो। ये भी काम उन्होंने वहां किया। तो जनाब अगर जेल भरो, तहरीक शुरू करनी है तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए, जेल भरे, हुसैन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, हसन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, अली इमरान साहब को भेजे, जेल भरे, सलमान शहबाज साहब को भेजे, जेल भरे, इसहाक डार साहब को भेजे, जेल भरे। खुद तो जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी वहां तो जनाब मौलवी फजल रहमान ने जनाब कहो जी कि जहर खाओ। मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। डॉलरों का हलवा, यूरो का हलवा, वो जनाब चंदों का हलवा, तहरीक चलाने की सूरत में इधर से आले जरदारी से जनाब डोनेशन का हलवा, इधर से जनाब आले शरीफ से जनाब डोनेशन का हलवा, वो जहर नहीं खाएंगे। तो जनाब आपने सियासतें भी की, लेकिन क्या नहीं किया, इलाज नहीं करवाया, अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, डॉक्टर्स के पास एडमिट नहीं हुए, आपकी जो प्लेटलेट्स का इशू था उसको एड्रेस नहीं किया। और जो एफिडेविट और जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उस पर लिखा था कि ये जो 8 हफ्ते आप जा रहे हैं उसमें आप हर 15 दिन बाद पंजाब हुकूमत को ऑथेंटिक अस्पताल के ऑथेंटिक डॉक्टर और फिजिशियन की 15 रोजा रिपोर्ट भेजेंगे पंजाब हुकूमत को, और पंजाब हुकूमत फिर अदालत के सामने पेश करेगी। और जब आपका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो फिर आखिरी रिपोर्ट को देखकर पंजाब हुकूमत मेडिकल बोर्ड के जो मुसलसल उनको देखता चला आ रहा था उसकी आरा की रोशनी में फैसला करेगी और अदालत को रिकमेंडेशन भेजेगी कि इनकी जमानत को एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। जनाबे वाला रत्ती बराबर इन्होंने कख तोड़ के दो नहीं किया इस पूरे इशू में। तो आप बताएं फिर क्या करें। जी विशाल, ये बताइएगा कि क्या हुकूमत और हुकूमती इदारे, प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियर कट कह दिया और फेडरल कैबिनेट ने भी नवाज शरीफ को लाया जाए, किस हद तक सीरियस है उनको लाने के लिए, क्या अमली इकदाम किए जाएंगे और क्या उन लोगों पर भी हुकूमत पंजाब चेक एंड बैलेंस करे कि जिन डॉक्टर्स ने इतनी संजीदा रिपोर्ट बना के भेजी कि एयरपोर्ट पहुंच के
उस रिपोर्ट के बिल्कुल बरक्स नताइज नजर आए। साहब इसके साथ ये भी ऐड कर लें, मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात आपने कब करवानी है? आधे मिनिस्टर आप ये कह रहे हैं वो जाली थी रिपोर्ट्स, और सूबाई मिनिस्टर जो है आपकी वो कह रही है रिपोर्ट जो थी मेरे सामने बनी, इस पर भी कमेंट करें। अच्छा, एक खवातीन की तरफ से हाँ फातिमा आपने उनको पूछा तो पूछ लो। इसके अलावा तो बैठी हुई यहाँ पे हर दफ़ा जाना बाकी हाँ हाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है हुकूमत के खुद जो है जो अरकान हैं उनमें काफ़ी जो है इख्तिलाफ की बातें चल रही हैं, तो इस हमारे से नवाज शरीफ को वापस लाने में कोई असर होगा? हाँ जी, कोई और ऐड करना चाहिए जी? आप ये कह रहे हैं कि इस अंडरटेकिंग पे शबाशी सब नाहल हो जाएंगे, लेकिन इसमें तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर देन डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रेड, ये तो वाज़ेह लिखा है। सारों दूसरी बात जिस पर ये बता दें कि 8 महीने लेके सवाल है, 8 महीने हो गया हुकूमत मखबूस है, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मियां साहब की वापसी के मतलब या वो सारे अब ये जी सारे क्वेश्चन सारे दोस्तों को हो गया, आखिरी क्वेश्चन इसके बाद बट सकता होगा, ठीक है जी? और मोहसिन साहब का और बट साहब का दोनों का। मेरा फिर एक तरफ मुफ्ती जो गुजरा है वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाजमी लाना है, हम मैच पे जाएंगे। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम ला ही नहीं सकते, ना ला सकते हैं, और ये मुमकिन ही अभी चल रहा था। अच्छा जी, इस तरह है, ज़ीशान साहब ने, आप सारे दोस्तों ने जो सवाल पूछे, देखें बात ये है कि हम तो सीरियस हैं। क्यों सीरियस हैं? इस वक्त नवाज शरीफ साहब सिर्फ हुकूमत के मुजरिम नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब नैब के भी मुजरिम हैं, उनके मफरूर भी हैं। नवाज शरीफ साहब एहतसाबी अदालत के भी मुजरिम हैं और उसके मफरूर हैं। नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के भी मुजरिम हैं और मफरूर हैं। नवाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट के भी मुजरिम हैं और मफरूर हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब के भी मुजरिम और मफरूर हैं। उनकी सियासत भी सारी की सारी सत्यानाश फिर जाएगी, जो मैंने आपके सामने रखा, और जो क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने नाअहल होने के हवाले से। तो अब तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब सारों के मुजरिम हैं, अवाम के मुजरिम तो पहले ही थे। तो मैं ये समझता हूँ, कुछ दोस्तों ने कहा कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कल एक टॉक शो में कहा, आज मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ, सपोज वो वापस नहीं भी आते, जो छितर परेड और जो रसवाई इनकी हर रोज इस टॉपिक पे होनी है ना, वो पाकिस्तान बुला के भी जना जेल में बंद करने के भी इनके खाते में नहीं आएगी, जो अब हर रोज होनी है। ये अल्लाह पाक की तरफ से है, अल्लाह पाक की तरफ से है। जब आप मुल्क के साथ मुल्क की जनाब मफादात के खिलाफ, मुल्क दुश्मन ताकतों को जनाब अपना भाई बंद बनाएंगे, मुल्क खेलेंगे, तो फिर अल्लाह पाक ऐसा जो है वो अजाब लाता है कि हर किस्म का एजाज़, हर किस्म का उन्वान, हर किस्म का लक़ब, इंटरनेशनल अखबारात और मैगज़ीन से लेके पाकिस्तानी अखबारात और मैगज़ीन, इंटरनेशनल टीवी चैनल से लेके पाकिस्तानी टीवी चैनल तक रोज़ाना पिछले 5 साल से इनके खाते में आ रहा है। मफरूर का रह गया था, वो मफरूर का टैग भी लग गया है, ठीक है जी। बाकी नहीं आ पाएंगे तो जो इज्जत अफजाई और रसवाई और जगहसाई जो हर रोज़ इनको सुबह शुरू होगी और रात तक जो मिलेगी, मैं ये समझता हूँ कि ये वापस आके जेल में बंद होने से भी ज़्यादा जो है वो खतरनाक है। और एक क्वेश्चन जो बीच में साथी ने पूछा कि मेडिकल रिपोर्ट्स, एक मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, हकीकत क्या है? मैं तो पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ, छोड़ दें यार इस टॉपिक को। मान लिया बिल्कुल ठीक प्लेटलेट्स गिर गए, मान लिया बिल्कुल सीरियस बीमार थे, मान लिया नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह 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 मरने के करीब थे, मान लिया माज़अल्लाह माज़अल्लाह मौत का फरिश्ता हाथ में वारंट मौत लिख के लेके जना पीछे पीछे फिर रहा था, मान लिया यार सब कुछ ठीक था जो इन्होंने रिपोर्टें पेश की, माज़अल्लाह मान लिया। और उसके अगली तो कहानी बताओ, जब चले गए ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, डॉक्टर के पास जाना है, ऑथेंटिक अस्पताल पे जाना है, मेडिकेशन करनी है, ठीक है जी, उसके बाद 15 दिनों की रिपोर्ट देनी है, फिर जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी पंजाब हुकूमत फैसला करेगी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम फिश, मौज बलंगा दी, वो तो अपना झूम रहे हैं और घूम रहे हैं, उन्हें फिक्र फाका ही नहीं, ठीक है जी। मैं तो इस टॉपिक पे नहीं
जनाब डॉक्टर अदनान के ट्वीट सच्चे थे, बेगम सफदर अवान के ट्वीट सच्चे थे, या डॉक्टर अदनान के टीके सच्चे थे? छोड़ो इन ट्वीट और टीकों की सियासत को, छोड़ो कि वो जेन्युइन बीमार थे या नहीं थे, मैं इस चीज पे पढ़ता ही नहीं। इसके बाद का जो अगला लायामल था उसमें जनाब अब कोविड-19 बीच में आ गया, 6-7 महीने रियासत, अदारे, हुकूमतें उसमें मसरूफ थी। अब जब वो खत्म हो गया है तो अब अपना फर्ज तो क्या वो पूरा करना है। जी भट्ट साहब, आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद तो आंसर ये भी बता दें कि आप अपोजिशन को इल्जाम दे रहे हैं, हुकूमत का ये वाज़ेह ऐलान है कि हमें अपोजिशन का किसी मरहले पे कोई तावन नहीं चाहिए, करप्ट लोगों से हमने तावन लेना ही नहीं है, तो फिर उन्होंने सेनेट पे अगर आपके बिल को अपोज किया है तो आपको परेशानी क्यों है? हाँ जी भट्ट साहब, सारे इकट्ठे पूछ रहे आखिरी में। जी भट्ट साहब। पहली चीज तो ये कि बरतानिया के साथ हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि हम वो वहाँ से लेन देन उनका कर सकें। पहले वापस लाएंगे से अब आप आगे पर आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये फरमाइएगा कि सुना था कि वज़ीर आज़म मुस्लिम दुनिया के बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होते, लेकिन वो तो सोशल मीडिया जिस तरह के आपने पूछा कि बड़ा ओपन है, उसने तो एक्सपोज कर दी ये पिछले साल की लिस्ट थी जिसके ऊपर शादियाती बजाए गए और एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई, और उस जो लिस्ट पाकिस्तान से भेजी गई उसमें भी वज़ीर आज़म का 16वां नंबर था। ये क्या मामला? अच्छा तो साहब मुझे ये बता दें, तल्ले कर करके आपने उनको बाहर भेजा कि खुदा वास्ता बाहर चले जाओ, अब मिलते कर करके आप उसको वापस बुला रहे हैं। अगर यहाँ पे जब जेल से तब क्यों नहीं कुछ लिया गया? हमें 50 रुपये का स्टाम्प पेपर नहीं चाहिए, हमें लूटी हुई रकम चाहिए उनसे। तो जब यहाँ पे थे उनको रखते, मारते, फांसी देते, मैंने तो नहीं निकाला। खान साहब कहते हैं मेरे हाथ से निकल गया, वो वज़ीर आज़म के हाथ से निकल गया, वो बकरी का बच्चा था, खान साहब के हाथ से निकल गया। और दूसरे नंबर पे एक बचवान साहब ये बताएं, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए फेसबुक के बारे में आप जब आए आप कहते थे मैं यार वो मैं स्पेशल वो कर देंगे। जो कुछ हो रहा है ना ये हर रोज होएगा नवाज शरीफ साहब वाला, और तुझे क्या ना बकरी के खिलाफ। मैंने आपको कहा जो रुसवाई या घसाई सुबह से लेकर रात तक आप मीडिया वालों ने, अपोजिशन ने, मुखालफीन ने, अपनों ने, परायों ने देनी है ना, वो वापस बुला के जेल में बंद करके भी इनके खाते में नहीं आ हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि बंदे के लेफ्ट राइट भी बंदे बैठ के उनको करप्शन या धोखा दे देते हैं, जिस तरह इमरान खान को जहांगीर तरीन ने धोखा दिया। ये नवाज शरीफ साहब की जो कड़ी है ना वो नैब दफ्तर लाहौर में जाकर मिलती है। यास्मीन राशिद ने कहा कि प्लेनेट्स का वहाँ से मसला हुआ। अगर मरियम नवाज को चावलों के टिफिन में मोबाइल रखकर पेश किया जा सकता है नैब के दफ्तर में, तो क्या पूरा वहाँ भी करना चाहिए? ISI और MI पर मबनी एक तहकीकाती टीम बनाई, मिल जाएगा कि वहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप उस जानिब क्यों नहीं जा रहे ताकि वो क्या कहते हैं कि पहले ही मालूम आ जाए? चलो आखिरी सवाल मोहम्मद रिजर साहब। ये बताएं कि आजकल कराची मुसलसल डूबा है 2 दिन से, पहले तो सारे लोगों का पंजाब की तरफ से था, लेकिन आजकल आप लोग बिल्कुल खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे, की वजह क्या है? यार वैसे ना कराची के हवाले से मुझे बड़ा अफसोस होता है, जिस मुराद अली शाह साहब को ना पिछले 5 साल से $6 मिलियन मैन जना 6-7 अरब रुपए का इनका DGPR का जना इनका बजट है एडवर्टीजमेंट का सिंध हुकूमत का, उसको इस्तेमाल कर करके उन्होंने बड़ा हीरो के तौर पे पेश किया। एक बारिश ने जनाब सारे का सारा सत्यानाश करके रख दिया कि जनाब इनकी औकात क्या है। जिस हुकूमत ने नाले और नालियाँ साफ करने के लिए भी फौज को बुला लिया, NDMA को बुला लिया, उसको मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी लेके ना उस पर डुबकियाँ मारनी चाहिए, डुबकियाँ है ना। उनके किसी मिनिस्टर को आके जो ना हर रोज़ ये शो करना कि जनाब हम बहुत बड़े हीरो हैं या हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा हीरो है। मुसलसल 13वां साल है, अभी मेरा भाई कोई ना कोई जना मुझे ट्राट करने के लिए कहेगा हाँ जी लाहौर में भी ये, फलां में भी ये। हमारा तो दूसरा साल अभी खत्म नहीं हुआ, 26 तारीख को दूसरा साल खत्म होना है, 26 अगस्त को। आज 26 है, आज खत्म होना है, बल्कि 27 को खत्म होना है जो कैबिनेट ने। ये 13वां साल है, 13वां साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। बिलावल जरदारी साहब ये इंग्लिश की और उर्दू की लिखी हुई तकरीरें पढ़ के जनाब आप मैसोलिनी और हिटलर और जनाब माओजेतुंग बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, परफॉर्मेंस से होता है। 13 सालों में तो बड़ा कुछ हो सकता है, लगातार 13 साल हुकूमत हो। जो 13 सालों में कराची के नाले नहीं साफ कर सके और उन नालों की सफाई के लिए फौज और NDMA को आना पड़े, डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है जी।